Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. One of the topics which have been hitting my comment section is personality and its determinant. I've already posted few lectures on personality. I will be sharing the link in the description so that you can just follow those lectures. Otherwise you can follow it in my playlist section also. And do join my Telegram channel because there I am sharing all my resources. So let us begin with today's topic, that is personality and its determinants. So let us talk about the first thing, and that is called what is personality, right? The first thing, personality is not about smiling face, positive attitude towards life or friendliness. So first, one thing which we need to understand, that these are not personality. If somebody is smiling, that's not personality. If somebody is showing positive attitude towards life, that's not personality. If somebody is friendly or very extrovert, those are not personality, right? So what psychologists talk about personality, that they called it as a dynamic concept describing the growth and development of a person. So personality is something which describes the overall development and growth of any individual, any person. So let me define personality. Personality can be defined as sum total of ways in which an individual react and interact with others. That means personality को हम कैसे देख सकते हैं, हम उसको एक समेशन के फॉर्म में देख सकते हैं कि कोई भी पर्सन या कोई भी इंडिविजुअल किसी भी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करता है, कैसे इंटरैक्ट करता है दूसरे लोगों के साथ. तो रिएक्शन हमेशा हमारा किसी पर्सन को, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी सिचुएशन को लेकर होता है. सिमिलरली हमारा जो इंटरैक्शन होता है वो भी दूसरे लोगों के साथ कैसा होता है. That is something that compile your personality level. So let me talk about determinants of personality. So the big question is how different person has different personality. We all know that everybody has a different personality, right? We always talk about that also in our daily life. But why this happens, right? So there are two major reasons for this, and the first is heredity and the second one is environment. These are the two main pillars because of which your personality of an individual grow. So let's talk about first one, and that is called heredity. So what is heredity? Heredity refers to those factors that are determined at conception, that is physical looks, facial attractiveness, muscle development, muscle composition, etc. That means heredity is something which is imbibed into us at the time of our birth. जैसे ही हमारा जन्म होता है उसी टाइम पे कुछ चीजें हमें मिल जाती हैं, जैसे हमारा फिजिकल लुक, हमारे फेशियल अट्रैक्टिवनेस, हमारा मसल का कंपोजिशन, ये सब कुछ हमारे हेरिडिटी से ही हमें मिल जाता है. इट इज एज्यूम्ड दैट पर्सनालिटी इज डिटरमाइंड बाय द जीन्स वी गेट फ्रॉम आवर पेरेंट्स. तो इसीलिए ये एज्यूम भी किया जाता है कि जो हमारी पर्सनालिटी होती है वो हमारे पेरेंट्स जैसी होती है, बिकॉज हमारे पेरेंट्स के जीन्स हमारे अंदर ट्रांसफर होते हैं, राइट? So different research studies were conducted to prove this assumption. Obviously ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया it is assumed, ऐसा माना जाता है. अब इस चीज को प्रूव करने के लिए बहुत सारी रिसर्च स्टडीज हुई हैं और हम उन रिसर्च स्टडीज के बारे में यहाँ पे बात करेंगे. तो लेट मी टॉक अबाउट दोज रिसर्च स्टडीज. रिसर्च वर कंडक्टेड ऑन यंग किड्स, ट्विंस लिविंग टुगेदर एंड ट्विंस हु वर सेपरेटेड एट ए यंगर एज. अब जो ये रिसर्च स्टडीज हुई वो डिफरेंट यंग बच्चों पर हुई, एट द सेम टाइम वो ट्विंस पर हुई जो लोग साथ में रहते हैं, और वो ऐसे ट्विंस पर भी हुई जो लोग अलग अलग रहते हैं. दे आर नॉट लिविंग टुगेदर, दे वर सेपरेटेड एट अ वेरी यंगर एज. स्टडीज ऑन द यंगर किड प्रूव्ड दैट स्ट्रॉन्ग एविडेंस ऑन हाउ हेरिडिटी इफेक्ट्स पर्सनालिटी. जो यंग किड्स के ऊपर स्टडी हुई दैट कंप्लीटली प्रूव्ड कि यस, हेरिडिटी हैज अ सिग्निफिकेंट रोल इन अ personality development of any individual. Traits like shyness, fear, aggressiveness are due to genetic characteristics. और उन्होंने ये भी बताया कि shyness मतलब शर्माना, fear मतलब घबराना, और aggressive मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा आना या बहुत ज़्यादा violent हो जाना, ये सभी कुछ हमें genetic genes से मिल जाता है, from our parents हमारे अंदर आ जाता है. On the other side, research were conducted on 100 twins who were separated at the birth and raised separately. Now this is very interesting. 100 twins के ऊपर एक रिसर्च हुआ, ठीक है, जो लोग बचपन में ही अलग हो गए थे. They were not living together, right? तो ऑब्वियसली अगर वो अलग हो गए हैं तो हम ये मान के चलेंगे कि उनकी पर्सनालिटी डिफरेंट होनी चाहिए. इफ हेरिडिटी हैज नो इफेक्ट देन देयर वुड बी नथिंग कॉमन इन बिटवीन एंड दे आर सेपरेटली. ऑब्वियसली वो अलग रह रहे हैं, अलग पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं, अलग फैमिली में रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम ये मान के, हमें ऐसा लग रहा था दैट देयर मस्ट नॉट बी एनीथिंग कॉमन इन बिटवीन. बट द फाइंडिंग्स रिवील्ड दैट देयर आर सो मेनी थिंग्स विच आर कॉमन. बहुत सारी चीजें उनके बीच में कॉमन थी, जैसे उनके बीच में उनका कार का कलर कॉमन है,
काफी सारे लोग तो चेन स्मोकर हैं, तो दोनों लोग चेन स्मोकर हैं, सेम ब्रांड ऑफ सिगरेट्स पीते हैं, सेम ब्रीड ऑफ डॉग्स पसंद करते हैं, वोकेशन एट द सेम टाइम पसंद करते हैं, उनके घर में बहुत सारी चीजों का लोकेशन सेम है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें उनके बीच में कॉमन नजर आ रही थी। And because of this, researcher founded that 50% of the personality is accounted by our genetics. And that is the reason why research ने ये prove किया कि 50% जो हमारी personality होती है वो हमारे genetics से हमारे अंदर आता है, चाहे वो हमारे parents में, हमारे father से आ जाए, either something from our mother से आ जाए, और कुछ ना कुछ हमारे उनके genes से हमें देखने को मिलता है। सवाल ये उठता है कि पेरेंटिंग का क्या रोल है यहाँ पे, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। डज पेरेंटिंग प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल? द ट्विन स्टडी ऑलरेडी इंडिकेटेड दैट पेरेंट्स हैज लेस इफेक्टेड ऑन पर्सनालिटी। ऑब्वियसली जो ट्विन स्टडी हुई, जो मैंने अभी अभी आपको बताया, जो अलग अलग पेरेंट्स के साथ वो रह रहे थे, तो वहां पर ऑलरेडी ये प्रूव हो गया कि उनके बीच में बहुत सारी चीजें कॉमन है। एंड दैट मीन्स ट्विन्स वर सेपरेटेड एंड रेज्ड बाय डिफरेंट पेरेंट्स। डिफरेंट पेरेंट्स ने उनको रेज किया था, स्टिल दे हैव सो मेनी थिंग्स कॉमन, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी पर्सनालिटी में बहुत सारी चीजें कॉमन निकल कर आई। So it was concluded that only contribution of the parents in the personality is the genes which they provide us at the time of birth. तो इसीलिए यहां पर कंक्लूड किया गया कि पेरेंटिंग का इतना रोल नहीं है। एट द सेम टाइम जो रोल है वो जीन्स का है, जो हमारे पेरेंट्स हमें एट द टाइम ऑफ बर्थ देते हैं। सो दिस वाज कंक्लूडेड इन द रिसर्च स्टडीज ऑन हेरिडिटी। Now let's talk about the second point, and that is called environment, कि environment का कितना रोल होता है। One of the dominant factor affecting personality is culture in which the individual is raised. अब obviously जब different लोग different country में रहते हैं, different family में रहते हैं, different religion में रहते हैं, different states में रहते हैं, तो क्या होता है, उनका culture different होता है। और अगर culture different होता है तो उनकी personality में भी difference देखने को मिलता है। The norms of our family, friends, school, social group influence our personality. Norms का मतलब क्या होता है? Rules, regulation, rituals, ऐसी value systems, ऐसी बहुत सारी चीजें जो हम अपनी फैमिली से सीखते हैं, हमारे फ्रेंड्स से सीखते हैं, स्कूल से सीखते हैं, द सोशल ग्रुप जहां पर भी हम काम करते हैं उनसे सीखते हैं। तो कहीं ना कहीं उन चीजों का भी हमारी पर्सनालिटी पे बहुत इन्फ्लुएंस पड़ता है। कल्चर इज समथिंग दैट इज पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। और कल्चर एक ऐसी चीज है जो कि जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, दूसरे से तीसरे में, तो वो लगातार पास ऑन होती जाती है और हम उन रिचुअल्स को, उन कल्चर को सीखते चले जाते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल है इंटरेस्टिंग सा, कि नॉर्थ इंडिया के लोग काफी आपको थोड़े एग्रेसिव नजर आएंगे, थोड़े वायलेंट नजर आएंगे, कॉम्पिटिटिव नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे लगातार इन्वेजन्स हुए हैं। नॉर्थ इंडिया का जो हिस्ट्री है उसमें अगर आप देखोगे, उसमें बहुत सारे लड़ाइयां हुई हैं, बहुत सारा इन्वेजन हुआ है, तो वहां के लोगों में वो कैरेक्टरिस्टिक्स नजर आते हैं, क्योंकि कल्चर पास ऑन होता है। जबकि अगर आप साउथ इंडिया की तरफ बढ़ोगे तो वहां के लोगों में आपको आर्ट, डांस, कल्चर, लिटरेचर, ऐसी चीजें ज्यादा देखने को मिलेगी। एक्सेप्शंस कुड बी देयर, एक्सेप्शन हो सकता है, बट ओवरऑल हम जब लार्जर पॉपुलेशन की बात करते हैं तो हमारे अंदर ये हमें देखने को डेफिनेटली मिलता है। Let's talk about some more points. Another important aspect of environment is related to characteristics of personality. कुछ और बातें हैं जो personality के characteristics से related है। Personality is relatively permanent. Obviously ये characteristic हमने already पढ़ा हुआ है कि that personality जो है वो बहुत परमानेंट होती है, लेकिन इट चेंजेस ड्यू टू सिचुएशन के हिसाब से ये बदल भी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, वी बिहेव डिफरेंटली इन रिलीजियस प्लेसेस, स्कूल एंड इन पार्क। ऑब्वियसली बात है, हमारा जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है जब हम किसी रिलीजियस प्लेस में जाते हैं, किसी स्कूल में जाते हैं, तो वहां हमारा बिहेवियर अलग होता है, पेरेंट्स के सामने अलग होता है, फ्रेंड्स के सामने अलग होता है, सिचुएशन टू सिचुएशन वो वैरी करता है, प्लेसेस टू प्लेसेस वो वैरी करता है। डिफरेंट प्लेसेस डिफरेंट पर्सनालिटी, ऐसा तो सबके साथ है, मेरे साथ भी है, तो आपके साथ भी मोस्ट प्रॉबेबली होता ही होगा कि हम अलग अलग प्लेस में अलग अलग पर्सनालिटी को एग्जिबिट करते हैं। पर्सनालिटी कैन नॉट बी स्टडीड इन आइसोलेशन, ones have to consider environment, और that is the reason why रिसर्च ये बताती है कि किसी की पर्सनालिटी में अगर 50% जीन्स का रोल है तो 50% इन्वायरमेंट भी कंट्रीब्यूट करता है, और इसीलिए पर्सनालिटी को आइसोलेशन में स्टडी नहीं किया जा सकता। वी हैव टू कंसिडर इन्वायरमेंट इन विच दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल हैज बीन रेज्ड। सो कंक्लूजन क्या निकल कर आता है इस पूरे टॉपिक का? तो कंक्लूजन ये है कि हेरिडिटरी प्रोवाइड्स अस इनबॉर्न ट्रेट्स एंड एबिलिटीज बिकॉज ऑफ द जीन्स, but our potential is determined by how well we adjust to the demand and requirement of the environment. हमारा जो रियल पोटेंशियल है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि हम किस तरह से इन्वायरमेंट में अपने आप को ढालते हैं, किस तरीके से इन्वायरमेंट में अपने आप को एडजस्ट करते हैं। आई होप कि आपको ये टॉपिक सारा समझ में आ गया हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। डू
ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। वहां आपको ये सारे पीडीएफ फ्रीली अवेलेबल आपको मिल जाएंगे। और थैंक्स फॉर योर सपोर्ट फॉर माय 25,000 सब्सक्राइबर। आई होप अगर आपका सपोर्ट बना रहा तो और भी ज्यादा लोगों तक पहुंच पाऊंगा, मैं बहुत सारे लोगों को पढ़ा पाऊंगा और मेरा ड्रीम पूरा हो जाएगा। सो थैंक यू। अगले सेशन में फिर मुलाकात।